Hey guys, what's going on? Today I'm here with अली another वीडियो अपलोड video होगी for हमारे चैनल पे? new videos I'm going to show. डिजिटल एक्सप्लेन पे करो ना, होगी एडिट. Show you guys how to make an NFT on your phone. Now this video is only about how to make the NFT art, okay? So if you want to learn how to make NFT art and be creative, I'm going to show you guys how to do this on your phone using a specific app. So in this video, I'm not going to show you how to upload the NFT on Wearable or any of those sites. I'm just going to show you guys here how to make one, and it can either be a photo or it could be a live photo. So let's get on it. We're going to get this app right here. As you guys can see, it's called the Motion Leap. It has kind of like a fox. I'll leave the link in the description below for both Android and iPhone. So after you download this app, it's very simple to use. कहंदी हुंदी सी जन तगड़ा बना दे. तारे जे पसंद मैनू इत्था सारे राधे उन तारियां दे विच जब मैनू दिखेगी मेरी याद जदों आओगी तां पता लगूगा दिल वाले लाले तू वरिए दिल तेरा जदों होगा तां पता लगूगा रस ना आया तैनू सी जो दिल दा महल बनाया सी छोड़ के मोती फुल्ला दे उसे बूटा लाया सी वे सामने चढ़ गई यानी Hi everyone, my name is Ritesh Agarwal. In this class you will learn how to spot a good idea, how to... हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग. आई एम बैक विद चूहा कलर शर्ट. आज कीबोर्ड नहीं रखा बिकॉज अभी से 1 घंटे पहले पूरी सेटिंग चेंज थी. हमने ग्रीन स्क्रीन वहाँ लगाई थी, क्लासरूम का सेटअप बनाया हुआ था. आई वाज द टीचर और फिर अभी हमने दोबारा सब कुछ चेंज किया एंड हैड टू डू दिस बिकॉज वीकेंड है एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर यू गाइस वेट फॉर दिस वन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो रियली एग्जॉस्टेड थोड़ा बहुत बिकॉज इट्स बिन अ वेरी हैपनिंग वीक. मैंने 6 वीडियोस बनाई है खाली इस वीकेंड. या आई एम ट्राइंग टू टेस्ट माय लिमिट्स. पता नहीं मैं 2 वीडियोस पर डे में चला गया हूँ. Production तेज कर दी. Ideas बहुत है. There's so much I want to tell. There's so many stories. Particularly, I want to share 3 There's WhatsApp so many tricks fun and facts tips I want that to you share should with know. you. It's just that editing takes its own time. Obviously, बोलना बहुत आसान होता है मगर उसके ऊपर कारीगरी, खासतौर पर जो आप शॉर्ट्स की वीडियोस देखते हैं, रफली टेक 3 से 4 दिन. वो जो 1 मिनट की वीडियो आप देखते हैं ना, फैंटा की हो गई या एडिडास की जो आपने देखी, they literally take 3 to 4 days because उसमें एनिमेशन होती है, तो बड़ी मेहनत होती है, दिल से काम किया हुआ था. खैर, without further ado, चलते हैं आज के सवालात की तरफ. Number 1 says, dealing with insecurities. Hello Junaid bhai, I hope you and your family are doing well. I love your podcast. I listen to them in the gym, going to work, etc. Literally full of nice content and funny as well. My question is about insecurity. My background: I live in Canada. I'm 24. Go to university and do a part-time job. I love going to the gym as well. Question: my insecurity is my eczema. I am a semi-good-looking man. I'm 6'1". I'm a fit guy. Only thing I don't like about my body is my dark neck. I have a patch of dark skin on my neck. This makes me feel so insecure about myself. Even at the gym, I look so good with a pump. I be feeling so happy and proud. Then all of a sudden, I look at my neck and feel down. I always think when I'm talking with someone, they are looking at my neck and being grossed out or thinking, what the fuck is that? I keep reminding myself people don't look at you the way you look at yourself. However, I can't get out of this insecurity. Sometimes I think they might reject my rishta because of this. Please talk about how I can get rid of this insecurity or any other insecurities people are going through. How to not give a fuck about what people are thinking. How to be more confident and loving and accepting yourself the way you are. Additional information: I was born in the West. However, I also lived in Pakistan for like 8 years of my life. Most comments about my neck were made in Pakistan. In Canada, like literally maybe a few people mentioned my neck in the past 10 years. Most Desi people are judgmental and they look at you. How to specifically not give a fuck about what Desis think, because this is more of an issue. I am totally with you when it comes to Desis being irresponsible with passing a comment या फिर insensitive about something.
क्योंकि हमें यहाँ इन चीज़ों पर ट्रेन नहीं किया जाता। इसी तर्ज का एक और सवाल आगे आएगा, उसमें भी मोर और लेस इसी तरह की चीज़ें हैं, उसमें भी मैं डिटेल में बताऊंगा। सो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि हमें ना हमारे यहाँ अगर क्योंकि बचपन से तरबियत नहीं दी जाती किसी के, अगर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है किसी भी किस्म की, लाइक द वे दे लुक, या किसी की आंख में कोई मसला है, किसी की चाल में कोई मसला है, या किसी के और ये बात आप मेरी हम बॉडी शेमिंग शेमिंग कितना करते ना, लेकिन बॉडी शेमिंग सिर्फ क्या फैट लोगों तक रिड्यूस की हुई है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट के नीचे जाएं, पीपल आर लाइक लूजली कॉलिंग मी गंजा, दिस एंड दैट व्हाटएवर। मुझे खैर फील नहीं होता, हल्ली वल्ली यार, जिसकी जो तरबियत है वो वैसी करेगा, ठीक है। आई ओन दिस, मुझे तो कभी, मैं तो उल्टा अपना, मेरा तो नाम, ब्रांड का नाम ही गंजी स्वैग है, ये लगा हुआ आपके सामने, तो उसको ओन कर लो ना। तो पॉसिबली एट सम पॉइंट मुझे भी फील होता होगा कि यार आई लुक एट माई फ्रेंड हु हैव फुल हेड ऑफ हेयर। मेरे अपने भाई, मेरे एक छोटे भाई के इतने लंबे बाल थे भाई कुछ सालों पहले तक तो फील होता है, बट देन फिर कुछ चीज़ों पे आपको कंट्रोल नहीं होता, एंड दिस इज व्हाट वेयर स्टोइसिज्म हेल्प्स मी अ लॉट। मैं काफ़ी मेंशन करता हूँ उसको, बिकॉज आई फर्मली बिलीव इन द टेनेंट्स। और उसमें एक चीज़ यही है कि सर्कमस्टांसेस पे आप जिस पे नहीं है कंट्रोल, तो नहीं है कंट्रोल, खल्ली वल्ली, तो मैं तो खल्ली वल्ली कर देता हूँ, तो मुझे कोई पॉइंट आउट करता भी है। बिकॉज ऑफ माई फ्रेम आई हैड अ वेरी, आई थिंक आई स्टिल हैव अ वेरी वियर्ड वॉक। तो उस पर भी लोग बहुत मजाक उड़ाते थे स्कूल में, कॉलेज में वगैरह वगैरह। बट एक चीज़ में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप भी फिर यही सोचें, यार एक चीज़ है, आपने तो नहीं बनाई, आपने तो नहीं डिज़ाइन की। और वही वाली बात है, बहुत सी बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि लोग आपकी उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं जो आप नहीं चाह रहे होते लोग नोटिस करें, और वो फिर आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसी पे रहती है, कहीं ये देख तो नहीं रहा, मेरे निशान को तो नहीं देख रहा है, मेरे स्कैप को या मेरे किसी मार्क को या मेरे बर्थ मार्क को तो नहीं देख रहा बार बार। ऐसा होता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। बट कंसिडरिंग द फैक्ट, आप बस जहन में ये जहन नशी कर लें, आप जिस मुल्क में रहते हैं कनाडा में, वहाँ पे लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकली बट इन देयर माइंडसेट एज वेल। तो वहाँ इन चीज़ों को इतना खातिर खा नहीं लाया जाता, एंड दे अंडरस्टैंड। तो आई डोंट थिंक आप अगर ये कॉन्फिडेंस अपने दिल में रख लें कि यार मैं जिस मुल्क में हूँ यहाँ पे इंसान के बच्चे रहते हैं, तो आपको इतना फील नहीं होगा। हाँ, रही बात देसीज की, तो देसीज का तो आपको पता ही है। The first trick that I want to make you guys. Hey guys, today I'm here with another interesting and useful video. The main aim of making this video is to make you guys aware of 3 WhatsApp tricks. The first trick that I want to make you guys aware of. पहले पढ़ रहा था, कुछ ईमेल्स फिल्टर आउट कर रहा था, उस हेडिंग का नाम ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये हमें है, हम समझते हैं कि बस हमने सिर्फ नमाज पढ़ ली और गरीब को खाना खिला दिया तो सब सही हो गया। अब हम आए दिन हम लोग ना हुकूक अल्लाह कर लेते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पूरे करते हैं, कुर्बानी, बहुत जो शुक्र, लेकिन जो हुकूकुल इबाद है ना, जो इंसान के साथ मामला है, उसमें हम बिल्कुल जीरो। क्योंकि हमें मौलवी साहब ने सारी जिंदगी क्या सिखाया कि आपने पूरे साल जितने भी गुनाह किए वो 27वीं शब को आप जाग लो तो जीरो हो जाता है। तो लोग कहते हैं तो बड़ी आसान डील है। या अगर आपका रोज़ा छूट गया तो जी 20 लोगों को खाना खिला दो, तो लोग रोज़ा भी नहीं रखते, कहते चलो जी सैलानी में खाना देख करवा लेते हैं। तो जब आप लोगों को इजी वे आउट दोगे ना, तो फिर उसको अब्यूज़ ही करेंगे। तो हमने हुकूक अल्लाह तो पकड़ लिया, हुकूकुल इबाद में चूंकि हमें इजी वे आउट है, हालांकि उसकी ज़्यादा सज़ा है। हमने अगर नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया और उससे माफ़ी नहीं मांगी, तो अल्लाह कहता है कि भाई सॉरी कांट हेल्प, वो वाली पार्टी है उससे माफ़ी मांगी, तो मुझसे आके क्या रो रहे हो। और यही होगा, लेकिन हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। और कहीं भी बात जो है ना वो ज़्यादा हर्ट करती है। वो कहते हैं ना, लफ्ज़ ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लफ्ज़ बहुत पावरफुल होते हैं। मैं कितनी बार बोला है, व्हाट डू आई यूज? पावर ऑफ स्पीच। Why are you following me? Because of what I say, it has meaning for you or whatever. तो इसी तरह उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा, बल्कि कहीं ज्यादा ही होता है। ठीक है, कई बार मैंने भी मेंशन किया है कि यार आप लोग इतनी मैसेजेस करते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं, मगर एक आध होता है गालियों का, पूरा मूड किल कर लेता है, बहुत खराब कर लेता है। तो नेगेटिविटी बिल्कुल इट्स रियली स्ट्रांग एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर आपको इतनी इनसिक्योरिटी है तो उसकी वजह ही यही है, बिकॉज एट सम पॉइंट इट हर्ट्स।
my very own cousin has I don't know if it's eczema, but he has like this skin condition कि उसके पूरे हाथ और पैर में, not on his front and back, but like legs में और हाथ में निशान है, और उसके ना he has no facial hair, और उसके सर पे भी जो है ना like he's like the reverse of male pattern baldness, पीछे से bald है. So like अब सोचे पाकिस्तान जैसे माहौल में वो बच्चा पला बड़ा है, ठीक है ना, उसको I'm very close to him because I really feel for him, और मुझे अंदाजा है कि वो कितना इनसिक्योर रहा है पूरी जिंदगी. I used to notice him कि कहीं भी जा रहे हैं ना, अच्छा लोग यूं हाथ पकड़ के ना, बच्चे हैं, अब चूंकि बच्चों को तमीज़ वालिदैन ने सिखानी थी, वालिदैन को अगर सास बहू के फड्डों से फुर्सत होती तो औलाद की तरबियत करते ना, तो औलादों की तरबियत इसलिए पीछे रह जाती क्योंकि नंदों से भी लड़ना है, शौहर को भी काबू करना है, शौहर ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, दूसरों में नैन मटक्के करने हैं, दफ्तर की पॉलिटिक्स करनी, तो औलाद तो बस हमने शो पीस के लिए कर दी पैदा, अब अल्लाह ही संभाले, तो अल्लाह ही संभाल रहा है. तो बच्चे जो है ना अक्सर एक दूसरे को पॉइंट आउट करते थे कि उसके बाल थे, एंड लाइक वो अपने अंदर ना खेल हो जाता था बिल्कुल. तो माशाल्लाह ही 30+ नाउ, स्टिल सिंगल, और उसकी बुनियादी वजह ये उसका कभी कॉन्फिडेंस ही इतना नहीं हुआ क्योंकि जाहिर है वो देखने में बहुत यूनिक है, ठीक है. तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल नोटिस की कि उसकी नज़रें हर वक्त ऐसी होती है कि मुझे लोग जज कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत नोटिसेबल है, राइट, यू कांट मिस इट. सो आई टोटली गेट यू मैन, आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम बिकॉज इट पोटेंशियली किल्स यू फ्रॉम द इनसाइड. मैं बस हाउ टू नॉट गिव अ फक, आई वुड से ओन इट, जो है वो है भाई, ओन करो, ठीक है ना. आई नोटिस्ड मी गेटिंग बॉल्ड. I mean, at some point I figured कि okay, they're not going to survive. I still have hair by the way. मैं हफ्ते में 2 बार बाल कटवाता हूँ, खुद काटता हूँ ट्रिमर से. तो it's not like I'm completely bored. मगर ये कि वो पैटर्न अजीब मुझे, मैंने देखा ही नहीं ना, आउटग्रो ही नहीं किया ना 2016 से. तो सो लाइक या मैंने फिर उसको ओन किया, मतलब ठीक है ये रियलिटी है, मुझे इसी के साथ रहना. अब जिसने जो बोलना है बोले, ठीक है ना, अल्ली वल्ली टेंशन ही नहीं लेनी, जो बोलता है वो बोले. तो आप देसियों में उठना बैठना कम करने में फिर यही मशवरा दूंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दुख वहीं से ही मिलेगा. बाकी I'm not the right person to talk about treatments or any plan. तो मैं उस पर तो खैर कुछ नहीं कह सकता from the cosmetic standpoint. तो वो that's absolutely your call. मगर ये कि as long as you have it, just fucking own it. I don't give a shit about it. I mean, it's आपकी चॉइस नहीं थी, it just so happened. So इसी तरह सोचो, मैं आपको ये मशवरा. Next question, piracy a sin? Hello Junaid bhai, hope you're doing well. My name is ABC. I'm from Pakistan. I've been religiously following you since 2015, and you have changed my life as a person, and I thank you a lot for that, honestly. Thank you very much. My question is, we have been pirating softwares, Windows and games from our childhood days without even knowing it. To the point people consider it's normal. I've seen many organizations working on cracked software and not batting an eye. I'm sure many of your listeners will be using pirated things and would honestly love to hear your stance on it. It may help understand why it's the same as stealing and is a sin we are unaware of. Yeah, that's a very good point. It is actually true. हम लोग चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज हुई हैं, तो हम उसको इतना सोचते नहीं हैं, और हम जानते ना जानते हुए भी जो है ना हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं. टॉरेंट भी हम दबा के कर रहे होते हैं, मैंने भी बहुत दबा के किया, मैंने भी क्रैक सॉफ्टवेयर दबा के यूज़ किए, क्योंकि यार जब तक औकात नहीं थी तो नहीं थी. लेकिन जब इस पोजीशन पे आए तो जाहिर है ये एक गिल्ट तो है, फील तो होता है. मैंने अपने तमाम स्टाफ को बोला हुआ है कि कुछ भी परचेज करना हो, वट एवर यू नीड, जस्ट यूज माई कार्ड, जो कि वैसे नहीं चलता. ऑनलाइन ट्रांसफर बैंक से सर आपने कोशिश की थी, अबे कोशिश ही कर सकते, तुम चलाते ही नहीं हो कार्ड. तो इट इज स्टीलिंग भाई, चोरी है. क्योंकि यार आप सोचो, ये विंडोज बनाना अगर इतना आसान होता ना, हर गली मोहल्ले में बन रहा होता. क्यों दुनिया में इतने कम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? क्योंकि यार इसमें बहुत सालों की मेहनत होती है, ठीक है ना. मैंने ऐसे बहुत सालों की, तो वो वाले साले नहीं, सालों की, टाइम की, ठीक है.
तो आपको कैसा लगेगा यार? और ये चीज मैंने पता कब रियलाइज करना शुरू की, जब मैं मीम्स बनाता था और लोग बड़े प्यार से उठा के अपने पेज पे चला दिया करते थे। तो मैं यार ये तो बनाया मैंने था, मेरी मेहनत थी। फिर मुझे ख्याल आया इसी तरह दूसरों की मेहनत होती है वीडियो गेम जो हम क्रैक कोड लगा के चला रहे होते हैं। फिर मैंने मीम्स वीडियोस में बनाना शुरू किए, वो भी चोरी हो जाते थे, अभी तक होते हैं। मेरी वीडियोस उठा के वो जैसे अभी वो अमेजोन गो की स्टोर वाली मैंने आपकी स्टोरी में भी डाली थी अपनी, किसी ने उठा के अपने पेज पे चलाई, बुरा लगा ना। अबे इतने लाखों का टिकट लेके मैं गया न्यूयॉर्क, मैंने वहां इतनी खज्जल ख्वारी की, इतनी गर्मी में घूम फिर के मैंने वीडियो बनाई और किसी ने बड़े मजे से यूं डाउनलोड की और यूं अपलोड कर। कितने पेज व्यूज थे उस पे? 8-10 लाख थे उस पे भी। मतलब वो व्यूज मुझे मिलने थे, उसके पैसे मुझे मिलने थे, जो कि कोई और ले गए। ठीक है, तो जब आपकी चीज चोरी होना शुरू हुई ना, फिर आपको एहसास होता है। और ये एहसास जाहिर है मेरे आया क्योंकि ये चीज इतनी नॉर्मलाइज थी, हम कभी सोचते नहीं थे। और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं है, इंडिया में है, क्योंकि बिल गेट्स ने शर्त ये रखी थी कि भाई आप एंटी पायरेसी लॉज थोड़े स्ट्रॉन्ग करें। लॉज हमारे यहाँ पूरे हैं, हमारे यहाँ सड़क पे थूकने पे भी अगर आप जुर्माना ना दे पाए तो 6 महीने कैद का कानून मौजूद है। इम्प्लीमेंट नहीं होता, बात सारी है। ठीक है, इसी तरह पायरेसी लॉज तो हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है। तो उसने यही बोला था यार कि आपके मुल्क में इतना यूजर है, लेकिन मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसमें तो खाली इतने से ही है। तो आपका पूरा मुल्क जो है जाली विंडोज पे चल रहा है। अब इतनी औकात तो है नहीं कि हर कोई एप्पल पे चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? अब जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ रखा हुआ है तो मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है? तो इतनी तो अकल उनको भी है कि यार इतने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बड़ी बड़ी कंपनीज, आपने सही बोला, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ऐसी भी कंपनीज में मैं गया हूँ भाई के मतलब याद है, नाम नहीं लेंगे, गए थे, बीच में जमात हो रही थी और उन साहब का नाम अखबारों में किन चीजों में आता है। अबे भाई सोचने की बात, बीच में जमात हो रही है नमाज की और वहां पे सारी ये वाली विंडोज चल रही थी। तो हम ना इसको सोचते नहीं, कहते हैं भाई ये तो बट ठीक है ना, तो ऐसे ही चलता है। तो ऐसे नहीं चलता, ये गलत बात है, वो बिल्कुल चोरी है। अब जस्ट बिकॉज आप देखो, हमने ना चोरी अभी तक वही समझी जो 70s, 80s, 90s या अभी मोबाइल चोरी होती है ना, या गाड़ी किसी से चोरी की, फिजिकली कुछ चीज लेके गया आपसे। डिजिटल चोरी भी वही चोरी है कि यार मेहनत किसी और की थी, आपने बस यूं करके उठाई और अपना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप एक तरफ से इतने हर चीज के पाबंद हो, तो आपका जो पूरा कारोबार है, जिससे आप रिस्क, आप सिर्फ आप नहीं, आपकी बदौलत 200-400 जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके घर का रिस्क, रोजी रोटी चल रही है। तो अगर आप जाली विंडोज पे चला रहे हो या जाली OS पे चला रहे हो, ठीक है, तो यार आप हराम खिला रहे हो टेक्निकली। ऐसा ही है भाई, चोरी के माल से अगर मैं पैसा बना रहा हूँ, हराम है ना, सीधी बात है। मगर ये हमें समझ नहीं आती। हम समझते हैं चोरी वही है कि यार इसके वॉलेट में से मैंने पैसे निकाल लिए, वो चोरी। अभी ये भी चोरी है। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं। लोग हमें ये पता क्या क्या रीजन देते हैं, आपका पब्लिक पेज है, चीज पड़ी हुई थी पब्लिक, तो हमने उठा ली आपके पेज से। तो मैंने बोला ठीक है सर, तो मेरी गाड़ी भी पब्लिक पे रोड पे खड़ी है, तो उठा के दिखाओ ना। तो मैंने G4 के फायर मारे मैंने, मतलब समझो मेरी बात। ये लोग बाकायदा रीजनिंग देते हैं कि यार मीम है, ठीक है आपका मीम है, लेकिन आपका पेज पब्लिक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी ठीक है, एंजॉय करने के लिए, उठाने के लिए नहीं है। वो कहते हमने उठा ली, तो मेरा ठीक है, मेरी गाड़ी भी खड़ी, वो भी उठाया आके, वो नहीं उठाते। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा ही बहुत रीजन जो है ना हमारी तनज़्ज़ुली का डिक्लाइन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी वजह है कि हमें ना सही गलत की तमीज बिल्कुल नैरो हो गई। पहले होता ना सही और गलत अलग अलग नजर आते थे, अब वो बिल्कुल नैरो हो गई। लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल ये हो गया है। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, सही, आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया और इस चीज पे सोचना चाहिए। चले, मैं मानता हूँ हम लोग बहुत सारे लोग, जितने भी आप लोग ग्राफिक डिजाइनर होंगे, फ्रीलांस पे काम करने वाले होंगे, ठीक है, आप स्ट्रगलिंग फेज में होंगे, तो आप इसको एज अ टूल इस तरह यूज करें। बट प्लीज अगर आप चाहते हो कि आप फैमिली को रिस्क के हलाल फीड करो और आपका ईमान है, कामिल ईमान है, चाहे आप किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, ठीक है ना, 2 नंबर पैसा तो नहीं खिलाना ना माँ बाप को। माँ बाप ने पाल पोस के, देखा हमें से ज्यादा लोग मिडिल क्लास शरीफ फैमिली के लोग हैं ना, या नहीं है, ठीक है ना, तो माँ बाप ने इज्जत की रोटी खिलाई है ना, पाल पोस के, इतनी गंदी गंदी चीजों से बचाया है। वरना यार व्हाट आर दी ऑड्स, मेरे मोहल्ले, मेरे साथ के क्रिकेट खेलने वाले, किसी की लाश मिली, कोई क्रैकर का बम
फाड़ते हुए पकड़ा गया, कोई गुटके खा खा के माउथ कैंसर से मर गया। 7 किलो जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, उस माहौल से बचा के रखा ना पेरेंट्स ने, है भाई, वरना कितना आसान है, यहाँ पे स्लिप होना कितना आसान है, लेकिन बचा के रखा ना, तो यार उसका आप रिजल्ट ये दोगे कि आप उनको 2 नंबर पैसा खिलाओगे, गलत बात है ना। तो प्लीज मेक अ प्लेज टू योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, आपको नहीं पता था, आपको नहीं अंदाजा था कि यार ये इतना बड़ा गुना हो सकता है, बट नाउ यू डू। तो जैसे ही थोड़े से अच्छे पैसे आ जाएं, फाइवर से अच्छी पेमेंट आ जाए, क्लाइंट अच्छा पेमेंट दे दे, तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदिए। उससे पता है क्या, आप अगले को रिस्पेक्ट दोगे। जो भी डिजाइनर या इंजीनियर बैठा हुआ है ना पैलो आल्टो में या कैलिफोर्निया में या वेरेवर, तो उस इंजीनियर की आप सॉर्ट ऑफ इज्जत कर रहे हो। यार तुमने अपने दिमाग से, अपने इंजीनियर से ये चीज प्रिपेयर की, ये एक्सेल बनाया, एक्सेल के ये फॉर्मूले बनाए, जिससे आज मेरी जिंदगी बहुत आसान है। मेरा कारोबार, जहां मुझे पूरा दिन खाते में लगना पड़ता था, आज मैं एक क्लिक मारता हूँ, खड़क सब आ जाता है। तो मेरी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। तो यार ये उसकी फीस है, ये ऐसे होता है। उसने आपको सर्विस दी, आप उसके पैसे देते हो। जिस तरह आप अपने कारोबार में सर्विस के अगेंस्ट पैसे लेते हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस देते हो, इस तरह उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कितने सालों की मेहनत करके, पढ़ाई करके, डिजाइन करके आपके लिए चीज बनाई ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। तो यार उसको 10, 20, 50, 100, $200 देने में आप जान जाती है, गलत बात है। कोशिश करें टॉरेंट वॉरेंट से बाहर आए, ठीक है, और नेटफ्लिक्स अपना ले लें। बहुत हो गए कजन के पैसों पे, किसी वजह से नेटफ्लिक्स इस मुल्क में आता नहीं है, क्योंकि कहते हैं यूजर ही नहीं है। यूजर तो भरा पड़ा है, मनी हाइस्ट तो सबने देखा है, मगर कजन के अकाउंट से देखा है, भाभी के अकाउंट से देखा है, ऐसे ही है। तो ये ना करें, कोशिश करें, ठीक है। ख्याल रखें। आज नेक्स्ट वन, स्टक इन अ कंडीशन। साल को जुनेद भाई, आई एम ABC फ्रॉम अ सिटी इन पाकिस्तान। बेसिकली मैं कंडीशन में स्टक हो गया हूँ। I'm 23. I'm a top-rated freelancer on Fiverr. Alhamdulillah, earning around $5,000 to $8,000 a month. MashaAllah. I have other sources of income as well. Plus, I belong to a well-to-do family. Vigo वाली फैमिली होती है ना, जिसके पीछे 2 गार्ड्स होते हैं, यानी खुला पैसा। Okay, good for you. So मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम। आफ्टर द यूनिवर्सिटी फिनिश्ड, एज यू नो, सब घर वालों की यही जल्दी होती है कि स्टडी पूरी हो गई है, अब रिश्ता करवाओ। So the girl I like, उसके रिश्ते आने स्टार्ट हो गए हैं और उसके घर वालों ने भी देखना स्टार्ट कर दिया है। So उसकी एक कजन का रिश्ता आया जो कि 15 साल उसे पड़ा था, बाहर से आया हुआ लौंडा। वो नो कह देती हैं एज एज डिफरेंस काफी है। देन आफ्टर अ मंथ शी गॉट कॉट बाय हर भाभी, जब वो मुझसे बात कर रही थी, और वो फिर मेरे बारे में बता देती हैं कि शी लाइक्स मी। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। उसमें मेरा उससे राब्ता खत्म हो जाता है फॉर 4 months ऑलमोस्ट, बट आफ्टर 4 months शी कॉन्टैक्ट्स मी थ्रू हर फ्रेंड्स नंबर एंड आस्क मी कि रिश्ता भेजो। सो मैं घर में बात करता हूँ और अम्मी कहती हैं ओके। सो अम्मी कॉल करती हैं, फिर कॉल उठा लेती हैं, कुछ देर बात होती है, कहती हैं सोचकर बताती हूँ, आप मुझे कुछ दिन दें, यानी उनकी लड़की की अम्मी फिर कॉल करती हैं 10 दिन के बाद। आगे से उसका भाई फोन उठाता है और कहता है हमने रिश्ता नहीं करना। सो वी स्टॉप कॉलिंग देम। फिर 4 महीने बाद उनसे राब्ता नहीं करते, एज दे सेड कि आइंदा कॉल ना करना, और वो 4 महीने हर तरह से रिश्ता करने की तैयारी करते हैं, मगर लड़की का रिश्ता नहीं होता है। अच्छा, कहीं और रीजन, उसके भाई ने किसी लड़की को भगाकर खुद शादी की है। तो जब भी किसी फैमिली से बातचीत होती है और ये बात पता लगती है तो वो आगे से ना करते थे। और मैंने घर वालों को बात इस बारे में बताया तो उनको इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं, बस लड़का लड़की आपस में खुश रहें, ये मैटर करता है, व्हिच इज गुड। देन आफ्टर 4 months, हाँ वही वाली बात ना, भाभी ने कुछ भी किया, अब उसका इससे क्या लेना देना, बात सही है, अच्छी बात है। देन आफ्टर 4 months, अच्छा आपका हर चीज 4 महीने बाद ही होती है, ये सही चल रहा है। वो कॉल करते हैं कि आया और आके हमसे मिलें। फिर हम सोचे गए कि रिश्ता करना है या नहीं, आप आए हमसे मिले, फिर हम सोचेंगे कि रिश्ता करना है या नहीं, with a very rude tone. As I belong to a high class family and she belongs to lower middle class, और जितना मैं मंथली अर्न करता हूँ वो लोगों का ड्रीम होता है कि बड़ा आदमी बनकर इतने कमाऊंगा। अच्छा बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते, मगरूर वाली बातें, ठीक है ना, सबका अपना अपना नसीब। बेटी As I belong to a high class family and she belongs to lower middle class, और जितना मैं मंथली अर्न करता हूँ वो लोगों का ड्रीम होता है कि बड़ा आदमी बनकर इतने कमाऊंगा। अच्छा बेटा, इस तरह की बातें नहीं करते, मगरूर वाली बातें, ठीक है ना, सबका अपना अपना नसीब। सो जब वो
जब भी बात होती है सिर्फ यही बात करते हैं कि हम सोचेंगे और फिर रिश्ता देंगे। मेरी फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई। मेरी फैमिली अब कहती है कि जैसे हम हैं और जितना को सेटल ऑन कर सकते हैं तो पास आ जाइए। बेटा हमारे घर से शादी करो। है क्या बोल रहे हो? वो आगे से ऐसे शो करते हैं कि तुम कोई चीज नहीं हो। अच्छा, एज देयर आर मेनी गर्ल्स इन माई फैमिली जो बस इस उम्मीद में है कि बस मैं हाँ कर दूं और वो रिश्ता कर दें। सो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां आपकी इज्जत ना हो ना तो वहां पे मुझे ये लगता है कि अगलों की फैमिली जो है ना, लड़की की फैमिली, वो आपको स्टॉल कर रही है। आपको एक बैकअप प्लान ऐसा होता है ना, बैकअप में लटका के रखा हुआ है ताकि शायद कोई अच्छा आ जाए, शायद कोई अच्छा आ जाए, अमेरिका का आ जाए, कनाडा का आ जाए, ऑस्ट्रेलिया का आ जाए। ठीक है, तो आप हो बैकअप प्लान। अब वो क्यों नहीं करना चाह रहे आपसे? अब आप कह रहे हो जी आपकी वीगो के पीछे 2 गार्ड भी हैं और आप बकौल आपके कि जी हम हाई क्लास के हैं और वो लोअर मिडिल क्लास। तो क्लियरली उनको उनकी शायद प्रायोरिटी ये चीजें ना हो। ठीक है ना? तो अगर आप इस तरह वे कर रहे हो कि जी हम पैसे वाले क्यों नहीं हाँ कर रहे, तो जी सबका टारगेट पैसा नहीं होता। शायद उनका कुछ और हो, या शायद वो कोई और चीज देखना चाह रहे हो, या शायद कोई जात पात का चक्कर हो। अब आई डोंट नो इसमें क्या हो सकता है। लेकिन ये कि क्लियरली आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो तो भैया ऐसी जगह वो अपनी सेल्फ एस्टीम से बढ़कर, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। आपको इतना लटकाया, मैं आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करता हूँ, और जो बिटिया रानी है वो भी दिल से मोहब्बत करती होंगी, लेकिन अब क्या करें, उनके घर देख वही वाली बात है कि ना, शादी दो घरों की होती है, 2 खानदानों की शादी होती है, 2 इंसानों की नहीं होती। तो आप कर भी लेंगे ना, लेकिन आपकी अम्मी के दिल में फिर ये रहेगा कि इन्होंने हमें बड़े नखरे किए थे और लड़की ना देने पे हमें साल रुलाया था। तो वो एक चुपकलिश एक रहेगी। फिर वो अपनी होता यही है कि फिर सासें जो है अपनी ये सड़न जो है फिर बहू पे निकालती हैं। ऐसा ही है भाई, उससे फिर चिक होगी। अच्छा, नहीं यार, वो इसमें एक वीडियो है, क्या नाम है, उसमें लिखा हुआ है बेस्ट एप्स टू माइन ऑन योर स्मार्टफोन। तो वो मैं स्मार्टफोन पे रिकॉर्डिंग करूँ ना। Which one is the plan? I'm up by the bar.
आपके घर का माहौल खराब होगा। तो जहाँ पे चीजें 100% ओके ना हो ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ा ऑफ सीन हो जाता है। जब सारे राजी हो ना, वो कहते हैं ना लड़का लड़की नहीं, अम्मी अब्बू को भी राजी करना होता है, वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे ही है ना, लड़का लड़की नहीं, अम्मी अब्बू भी पसंद करते हैं एक दूसरे अम्मी अब्बू को। वो राहुल सुब्रमण्यम बहुत अच्छा दोस्त है, तो उनकी वो यही कहते हैं ना कि अरेंज the definition of arranged marriage is when your parents have a boner for her parents, you know, जब वो पसंद करें एक दूसरे को। तो अब क्लियरली यहाँ पे वो थोड़ा सा वो है इस तरह का, अगर वो रूड हैं और बदतमीजी की है तो आपकी अम्मी शायद आपकी खातिर हाँ कर दें, लेकिन उनके दिल में हमेशा वो बात रहेगी और फिर वो बात कहीं ना कहीं से निकल जाती है। बातें छुपती नहीं है, चेहरों पे आया होती हैं। तो अगर आपकी फैमिली देखिए, आपके प्यार से बढ़ के ना आपकी फैमिली की इज्जत होनी चाहिए, आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन अगर कोई आपकी मदर की, फादर की, आपके पेरेंट्स हो गए, फैमिली की इज्जत नहीं कर रहे, उनको इस तरह रूड तरीके से बात कर रहे हैं और नहीं घास डाल रहे, तो खल्ली वल्ली दुनिया भरी पड़ी है भाई। आपने ही बोला मेरी कजन्स बैठी हैं लाइन से, तो उन्हीं को बिठा लें, वी को डालें है भाई, जो आना चाह रही उन्हीं को बिठा लें खुशी खुशी। लेकिन आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, ये नहीं कि वो चाह रही थी तो मैंने कर ली। सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए कि चलो वो चाह रही थी तो मैंने कर ली, खुद भी चाहो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग। फिर यही होता है कि भाई मेरे पास तो बहुत थी, मैंने तुमसे कर ली, फिर ये वाली बात है, तो ये ना करना, ठीक है। चलो ख्याल रखो। हाँ जी, नेक्स्ट वन, योर पेट्रन, अ यंग लॉस्ट स्वैग नीड थॉट्स फ्रॉम योर स्वैग फैमिली। डियर मिस्टर मिसेज अकरम bracket, maybe you will read this email alone since now you've left UK. Yes, I have. Sadly, greetings. May my email reach you in great health and spirits. First and foremost, I want to wholeheartedly thank you for entertaining us, but most importantly, I want to thank you for being a voice for the people and having the ability to share the truth in a unique manner. Thank you. May it long echoes. I remember following your videos back in your UAE days, and it has been a journey witnessing your success, and it gives me immense happiness in sharing your journey in a way. Thank you. Coming to the reason why I'm writing this email, I have to admit that it took me more than a year to gather the courage to write this email. यार अब देखो, अगले ने 1 साल हिम्मत करके फिर लिखी है, और खुदा ना खास्ता करी मेरी नजरों से ओझल हो जाती, मुझे कितना बुरा फील होता। आई एम प्रीटी श्योर 7,562 ईमेल्स हैं। आई ट्राई माई बेस्ट यार, मैं क्या करूँ, मैं तो 4 लोग लगा दूँ उस पर, मतलब फिर वही वाली बात है, सीक्रेसी। और कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी डेस्परेशन में ईमेल की होगी, एंड देन लाइक आई जस्ट कुडंट कम क्लोज टू इट बिकॉज द पेस इज सो फास्ट ऑफ ईमेल्स कमिंग इन। इट्स जस्ट आई एम सॉरी मैन, लाइक जो सुन रहे हैं और जिनकी ईमेल नहीं आ सकी। I will try not to drain you while you read this long email. The reason is simple. My dearest father is manipulating, controlling, and self-centered person. I honestly believe the majority of the problems are created by him. If you still have the energy, continue with the problem. Of course. Background. My story begins in Azad Kashmir, Mirpur. I'm not proud of Mirpuris. I'm sure you must have come across many in the UK. I'm not going to say anything, but aapne khud hi keh diya. My father moved to Hong Kong some 30 years ago, and he settled here after his arrival. He managed to settle here through a sponsorship visa from one of his relatives. I moved to Hong Kong with my mom to join my father in the early 2000s. I obtained all of my formal education in Hong Kong. I am now 22 and I recently graduated with honors from the City University, majoring in materials engineering. Nice. Currently, I am working as an assistant quality engineer at a giant French construction company. That's very nice. Yeah, but like, how is construction happening in Hong Kong considering it's already packed? मतलब हांगकांग फुल हो गया, मजीद कंस्ट्रक्शन किधर हो रही है? इट्स अमेजिंग। द प्रॉब्लम, आई लिव इन अ फैमिली ऑफ 5, 2 younger brothers aged 19 and 16 and my parents who are under 50 years of age. My dearest father is a driver in Hong Kong. I do not deny that whatever I have accomplished today, huge credit goes to him in terms of his parenting. However, I have grown to despise him over the years. My father is an abusive husband who not only verbally abuses my mother's side of the family but also physically and mentally abuses her. He believes that a wife should always submit to her husband and do as he says. My mother does follow and obey him. However, he makes issues out of very meaningless things. For instance, he asks my mom to call his brother to tell him to do certain things. That is just basically him
wanting to control others' lives. हाँ, वो होते ना, वो सऊदी से फोन कर लेते हैं, शमशाद ये करवा दो मेरा काम, अथॉरिटी जमाने के लिए होते हैं ऐसे अंकल. Another example can be if my mom says something as a joke, he can't take it and turns it into an argument, which turns into verbal and physically abusive behaviors. It's very sad अगर एक इंसान अपनी स्पाउस से मजाक भी ना कर सके, because I firmly believe, और मैं I keep saying it, कि more than love there should be friendship in a couple. Friendship बहुत important है. अगर आप उसको अपना दोस्त ही कंसिडर नहीं करोगे तो then what's the point? लव तो बात की चीज है. पहले फ्रेंडशिप होती है ना भाई, फिर प्यार होता है ना, या पहले प्यार हो जाता है. यहाँ तो सबको पहले ही हो जाता है, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है भाई. मजाक मस्ती खेलम कूद, समझ रहे हैं. Moreover, his problem with me is that I do not share my feelings with him. The reason I've been very reserved with him is that he always implements his ideas and manipulates. Another reason I began to hate my dearest father is that 2 years back when I was 20, I met a fellow Pakistani during my volunteering trip in a foreign country. We developed feelings for each other. We decided upon flying back to our respective countries, we will tell our parents regarding our situation. So I did share with my father, and my father was on a fast pace as he wanted to quickly talk to the girl and then her parents. अच्छा बेटा, आपने जो बात की ना, I began to hate my father. I would suggest you can say despise him or resent. देखिए, resentment होती है. Hate जो है ना is a very very strong word. Hate बहुत strong word होता है. Resentment हो सकती है क्योंकि मोहब्बत भी तो है ना. आप acknowledge कर रहे हो कि उनकी बदौलत आपने इतनी अच्छी जगह पढ़ाई की, तालीम हासिल की, तरबियत की उन्होंने आपकी. तो हाँ, कुछ चीज़ों पे आप रिजेंटमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, ये वाले वर्ड्स यूज करें. हेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है. हेट नहीं यूज, किसी के लिए भी नहीं यूज किया करें, ठीक है. However, it takes time for the girls in our society to talk about such things, that they want to marry a certain person with their parents. My father tortured me mentally by giving me deadlines. अच्छा, इनको लड़की पसंद आई एक फॉरेन ट्रिप पे, यूनिवर्सिटी का वो जो होता है, और तो इनके फादर ने इन पे वो लगा दी, डेडलाइन दे दी कि जी इस तारीख तक वहाँ से बात आ जाए. वो लड़की जाहिर है, हर कोई तो घर में इस तरह नहीं बात कर सकता ना शादी की, खासतौर पे जब आप पढ़ रहे हैं. So he started giving me deadlines saying if they don't call or contact us by this day, then it's over. Meanwhile, he was also manipulating me by saying that only give 50% respect to the females but get back 100% respect from them. I feel like he will always interfere with my personal affairs with my future wife as he does with others. यार कुछ लोगों को ना वाकई बॉस बनने की वो होती है. अब उसके पीछे लोगों की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है. कुछ को लगता है कि शायद उनको जिंदगी में उतना नहीं मिला, या उनको उतनी अथॉरिटी के चांसेस नहीं मिले, या फिर जहाँ वो काम कर रहे होते हैं वहां दबे हुए होते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो निकालना है, तो फिर वो घर आके बॉस बना करते हैं. सही है भाई, ऑफिसों में दबे हुए, वहाँ गालियां सुन रहे हो, फिर वो यहाँ आके निकाल रहे हैं, तो बॉस बनने का होता है. तो हाँ, ऐसे बिल्कुल लोग होते हैं. आई कैन थिंक ऑफ अ पर्सन इन माई फैमिली लाइक दैट. Eventually, his given deadline day arrived and he forced me to block this girl whom I so dearly love, and I still do. My father said to me, either you block her or leave the house. I honestly had no choice as I was in my 3rd year of university and I did not want to leave my 2 younger brothers and my mother with a tyrant. I had foreseen this happening, that's why I kept 2 phones with myself, smart move, so that when the day comes when he will force me to block her, I will do it on one phone. You see, strict parenting makes cunning kids. I never wanted to hide things from them, but I try not to feel guilty anymore. वही वाली मैं हमेशा ही बोलता हूँ, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो है ना, शातिर बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे रास्ता निकाल लेते हैं. इसीलिए फ्रेंडशिप ज़्यादा ज़रूरी है औलाद के साथ, ताकि बच्चा कुछ भी हो आपके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल फील करे. जहाँ उसको पता चले, वो याद है इंडियन फिल्मों में वो आके बोलता था कि वो इंस्पेक्टर सक्सेना ने माल पकड़वा दी तो पहला चमाट उसी को ही मार दिया. तो हम औलाद के साथ भी ऐसे, अगर औलाद आके बताती है कि बाहर हमें अंकल एक तंग कर रहे हैं, तो उसी को चमाट, तू बाहर गया क्यों था, अबे खेलने गया था बाहर. तो इसलिए फिर बच्चे आपको चीजें बताते नहीं और फिर उनके साथ बुरी चीजें होती रहती हैं. द साइकिल कंटिन्यूज. सो डेवलप अ फ्रेंडशिप विद योर किड्स. Eventually, our families did talk over the phone calls and video calls. However, the girl's side did not like my dad's personality, and my dad realized he's manipulative and controlling. Hence,
No, they realize he is manipulative and controlling. Hence, they decide to move away from the Rishta talks. But the girl's side never told my father the real reason why they don't want, which was, of course, related to his personality. Anyway, 2 years from that, I'm still in touch with my soulmate. Wow, khudi bana li soulmate, chalo good. And we have no idea how we will make us come together because whenever I reopen this topic, with my father, he played the victim card. Moving on to the present. Now I'm earning and I would like to be more independent in terms of making decisions or even making my own finance and helping my father with expenses. However, my father yet again forced in some way to give him 80% of my salary, right? So like he wants to control you basically. वो आपके भाई पूरी सैलरी 80% मांग रहा है बाप की सैलरी दे दो क्या मतलब ताकि पर कटे रहे इसके और मैं हाथ में रखूं ये जो है ना हमारे पेरेंट्स करते हैं ना कि अपनी औलाद को फ्रीडम नहीं देते वो बड़े भी हो जाते हैं उनको बच्चे बना के रखते हैं और फिर उसका रिजल्ट आपके सामने हमारी जो सोसाइटी का बेड़ा गर्क हुआ है उसके पीछे जाहिर है बैड पेरेंटिंग है बहुत बैड पेरेंटिंग है तो वो देखो 80% सैलरी जब वो ले लेंगे आपकी तो आपके पास 20% बचेगा तो 20% में आप क्या उखाड़ लोगे सो ही वांट्स टू कंट्रोल यू I wanted to divide my salary into 3 parts. 1 self expenditures, number 2 savings, and number 3 contribution at home. But my father did not like the idea and he started crying literally and saying things like I raised you and paid for your tuition fees. तो भाई पैदा किया था तो देनी थी मतलब आप क्या उससे पैसे मांग रहे हो हिसाब कर रहे हो क्या कि जी तेरी इतने साल की फीस है तो अब लाके वापस कर ये क्या बात हुई I divided my salaries with the family. Although he did not forcefully take the money, he did make a drama with my mom and created a toxic environment. Hence, for peace of mind, I had to give him 80% of my salary, which is equivalent to 3 lakh Pakistani per month. 3 lakh Pakistani le raha baap bhai. One of the reasons might be that he's afraid I will become financially independent. Basically, बात सारी ये है. हमारे पेरेंट्स जो है ना, खास तौर पे माएँ बेटों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटों की शादी तो खूब धूमधाम से करती हैं कि बहू लाऊंगी फिर जब बहू आ जाती है तो फिर माँ को अपनी एग्जिस्टेंस थ्रेटन लगती है कि यार अब ये यहाँ ज्यादा टाइम गुजारेगा आते ही सलाम करके उस कमरे में निकल जाएगा फिर माँ जो है ना वो समझती कि मेरा बेटा मेरा लखते जिगर जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया अब वो मेरे हाथ से जा रहा है वो कहीं नहीं जा रहा हो फिर आप इस तरह का बिहेवियर करते हो तो औलाद आपसे दूर भागती है ऐसा ही है भाई तो कहते ना पानी को जितना जोर से पकड़ोगे उतनी तेजी से बाहर निकल जाओगे आप किसी को ज्यादा प्यार भी टॉक्सिक होता है भाई समझते नहीं है लोग स्पेस नहीं देते चलो solving this problem I simply laid out 3 routes to get rid of this problem because this cannot be solved call the Hong Kong authorities whenever he's physically abusive I used to think this is the only way but now I feel like we should not take this step number 2 call in someone from the relative who my father would listen to but I know there is no such person grandparents have passed away and my father and older siblings don't like to talk to him father's older siblings acha number 3 pack stuff and leave whenever there is a new drama at home by leaving I mean leave forever whenever he is not at home and when he is gone to work that is the moment we take this step and live yes I admit this will be hard but it will be better for the long term future it may be even beneficial for me and my soulmate my current person favorite acha ye this is the I have communicated with my mom regarding the third plan however she is hesitant whereas both my younger brothers agree to this plan wow they understand this is the only way towards the future and peace of mind I believe the troubles that we face out in societies are nothing when you have a united and caring family who will always support you and never control you I'm confused myself I just entered the industry and making the most of the opportunities provided to me there is this huge problem at home which needs to be fixed then there is this long distance relationship and then there is work life and I'm also thinking of doing masters in the near future sometimes I just want to leave Hong Kong and the main reason is my father to start a new life in a place with new surroundings and of course a new episode of Ask Ganji Swag I want to apologize for such a long email I hope you made it here I believe the problem of domestic violence is very common in South Asia even strict parenting drives the kids away yes that's absolutely what I said लोग बच्चे भाग जाते हैं बच्चे बददिल हैं बददिल हुए मैं आपको मैं बता नहीं सकता कितने 15 साल के बच्चों की और 14 साल के बच्चों की ईमेल्स आई थी तंग आए मैं अपने माँ
लेकिन माँ बाप समझते कि भाई अब बच्चे आगे से बोलते नहीं है तो वो समझते नहीं तमीज के दायरे में, लेकिन फिर बच्चे ना एक ही बात, ऐसा ही है, बच्चे में बहुत सब्र होता है, लेकिन जब वो एक बार फटता है ना तो वो फिर बहुत देर हो जाती है। ये मोमेंट नहीं आना चाहिए किसी की लाइफ में। पेरेंट्स समझते नहीं, वो समझते हैं कि यार जिस तरह अब जैसे मेरा बेटा 18 महीने का ना, अभी मैं उसको कंट्रोल करता हूँ क्योंकि वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। उसकी 40 भी मैंने धोनी है, उसको खाना भी बनाना है, मेरी बेगम हंस रही होगी, मैं कुछ नहीं करता। आई ट्राई टू व्हेनेवर आई कैन, सही। तो लाइक वो डिपेंडेंट है, तो हम समझते हैं कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वो वही है, हालांकि वो नहीं, वो आउट ग्रो कर जाएगा। दे विल बी अपॉइंटमेंट माई एल्डर किड्स, वो अपना नाश्ता खुद बना के स्कूल भी चले जाते हैं, पता भी नहीं होता मुझे, ऐसा है, इतने इंडिपेंडेंट, राइट। मगर वो फिर हम क्या सोचते हैं कि जी वो वैसा ही है, तो वैसा नहीं होता, किड्स आउट ग्रो। अच्छा, आई एम होपिंग द नेक्स्ट जनरेशन लर्न टू रिस्पेक्ट अ वुमन एंड एंड्स डोमेस्टिक वायलेंस। द सक्सेस ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय हाउ वेल are its women being treated, and I hope we learn that. That's such a good line that you said. Thank you so much. I hope you can manage your time, and it will be great if you can share your thoughts or even motivate me on how I can help myself and my family get out of this unfortunate situation. I believe it will also make your followers realize that even living in the best cities won't help if your mindset is not changing. My prayers are with you and your family. May Allah keep you close. My greetings to Mini Swag and your Swag. Honestly, bro, like if you're Our thoughts feeling will like you're cross like my working maybe too much or not really respected in some sort of way, because we're just chatting, right? For like right now, for example, it's kind of different. It's not like I'm demanding you to do stuff right now. But if you got clients that do that, what I do is just set the bar. Like you set the bar. For example, if I'm messaging with a guy, like let's say it's a freelancer or just a normal person in real life that I know, a friend or a person, and I'm going to message that person, let's say 10 times per day, like throughout the day, and then also at like 1 a.m. And that person is constantly replying within 10 minutes. He himself is creating the idea and pretty much the expectation from the other side that he or she needs to reply within 10 minutes. So if I message you and you're always replying within 10 minutes, you pretty much set the bar for that. It's not the client, it's not the person you're messaging, it's you yourself, because you always reply within that specific time period. So you set the bar too high for yourself, where you're anxious when you're not replying. But I also know people that are maybe very busy or just not on their phone too much, that I message, and I just know because they never reply, or because they reply not fast, but within hours, let's say, I don't expect them to reply within 10 minutes because they didn't set the bar at that level, if that makes sense. So that's also something to think about in your case. If you're like actually anxious to not reply fast, or you always want to reply fast, what I would do is, like you said, set time slots. So just let them know, right? For example, you can let me know, I'm only going to reply to messages on like every day, but then in the morning, like between 10 p.m. Between 10 a.m. and then 11 a.m. So what I'll know, because you only do so, is that I'm going to message you within that time period. I'm going to make sure that I've got like all the questions and all the things I need to do. I'm going to say, and then it's done. You're done within that day for my specific contact. But like I said, if you're constantly replying within 10 minutes, whenever he's messaging, so I message you at 1 p.m., you reply 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 1 a.m., 2 p.m., whatever, right? And you always like reply right away. You're creating that expectation yourself because you're always doing so. And then when you don't reply within a few minutes, the client is like, hey, what is this guy doing? He's not replying, but he's always replying. But if you never do that, and you're only replying within 4 hours all the time, I send a message, but I don't like expect you to reply right away. And honestly, bro, like because you're replying pretty fast, if you're always replying to everyone all the time pretty fast, your days suck, bro. Like honestly, check your screen time for WhatsApp. It's probably gonna be huge, or whatever messaging you use to work with all the clients. I would honestly, for yourself, like for your sleep, and just your time in general, I would honestly set that up where you're only texting, or like you let clients know I'm only gonna reply at this specific time, and then they'll respect that. Like they won't demand you to reply right away and stuff like that. So yeah, these are just pretty much my thoughts on that. I'm pretty sure like I mean you don't have to do stuff like this, but if you're feeling like you've got not enough time, you want to fix your sleep schedule and stuff like that, I would highly recommend doing that.
रहा था मुझे। क्या गपशप होगी, क्या हिसाब किताब किया फिर, परसेंटेज या फिर जरा वो कह रहा है प्रोजेक्ट अभी नहीं करना है ना, वो थोड़ा टाइम तक करना है। अभी क्यों नहीं? पता नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी हूँ? हाँ खैर वो क्या कर रही है, ये शादी है? क्या कह रहा है? वैसे इस चैनल दिखा रहा था, मैंने ये बनाया है, व्यूज देखे? अरे ये भी जो था हमने बनाया ना, दो इसी तरह के हैं लेकिन एक डिफरेंट है, NFT वाला। क्या कहता है चैनल का? Grammarly can help you write quickly and क्या con- पूछना मेरे से पूछ रहा हूँ, बताता हूँ। क्या पूछ रहा है फिर? बस ये मैंने पूछा था कि वीडियो के टाइटल किस तरह ढूंढो कि जो ही जुड़ जाएगी। फिर बस क्या कहता है? क्या कहता है फिर, कैसे हो गया? कहते मेरी वीडियो देख लो ऐसे। Confidently. मैंने So you कहा था know- कि मैं कल ये देखूंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कहते मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लो। मैं कहा क्या कमेंट्स हैं? 40 मिनट का कोर्स था इसने और पूरा जो करता होता। 2021 अभी अपलोड की है सब प्लान में। search results as a total beginner. Now, I've been doing this for a while, and over 55.9% of all of my views are coming from YouTube search. Now, that means that over 32.3 million views have come from YouTube search traffic. Not recommended, not browse, all of it is YouTube search. So on my channel, I've got about 60 million views. 32 million of those are coming from YouTube search. Now this is one of my best videos on the channel. It has 1.8 million views. As you can see, it started off slow, but then slowly but surely. पैसे लेके मैं काम इसको कर दूंगा, पैसे मैं वीडियो के ले लो, उससे बचत करके मैं अपने चैनल में इन्वेस्ट कर दूँ। क्योंकि पहला चैनल बनाना मुश्किल है, पहला उठ जाए फिर दूसरा तीसरा आसान है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम देखते हैं, अगली 3 वीडियो चढ़ने वाली हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर नाम रखा करना, जो भी नाम होता है। शाने हो गया है। खोला हो गया, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह लग रहा है। सब्सक्राइबर कम है। वीडियो भी घंटे की पूरी होने वाली, 3 मिनट रह गई। उस टाइम से लगा के बैठो रिकॉर्ड। ये एडिट करेगा? कौन सी? ये जो प्लान नहीं भाई, ऐसे उठा के डाल देंगे ऊपर। क्यों जी? स्लैम कर देखो, देख रहे होंगे स्पैमर्स। गोरे देखेंगे हैं? गोरे नहीं, पतली को देख रहे होंगे जो सेंस में काम करते हैं। सैम्स कर तद से पहले की वीडियोस देखते हैं ना, इस तरह भी लोग काम करते हैं। मैं भी ऐसे करूँ, छोड़ दो वैसे छोड़ दो, ये काम शुरू कर दी की मान। वेल मेरा बड़ा रहता है ना साइड में। पूरा दिन बैठ है, चिल सी, टेंशन ही कोई नहीं। क्या हो गया जी, ये हो गया। क्या तू ये बेसिकल सीरीज लगी हो ना अभी? और सीडी पे अलग ईमेल हो, कॉपीराइट क्लेम आया, ये क्या बात है? कॉपीराइट क्लेम कौन सा है? अच्छा, गाने लगाए हुए थे इसमें। हाँ Rid of it, and I'm going to add to the project. Now it is loading. साथ बता रही थी ना अभी कैसे गाने की Rid of आवाज, it, and I'm going to add गाने to the की आवाज project. चेक करो ऐसी है। Now it is loading.
Isa, this is looking so cute. I mean, this is the best thing I've ever seen. आएगा ना स्ट्राइक वो मैच गाना लगा दी पीछे हमने कार्ड की सेगमेंट निकाल दिया पूरी खत्म होगी होगी अब वो हिस्सा ही कट गया ना ट्रांसफर भी होगी मतलब वो हिस्सा ही कट गया उसमें जो पीछे बोल रही थी तो ऐसी आवाज नहीं आ रही थी गाना वैसे चल रहा था वो हिस्सा ही उड़ा दिया कितने मिनट की रह गई जी अच्छा ये वही एनएफटी वाली ये तो 1159 है ये तो वही है जो उसने भेजी थी एडिट नहीं की तूने वॉइस ओवर कटिंग एडिट किया ना वो गलती निकाली 1159 कैसे मेरी 11 नहीं ये 10 मिनट को छूट की बनी है इतने की तो उसने दिया वही कह रहा था ये उसने दी Hey guys, what's going on? Today I'm here with another video तो for एडिट नहीं की तूने आपने वही पुरानी चीज क्या अपलोड मार दी अरे जी कि नशे कौन से नशे कर रहे हो मैं चेक कर रहा ये भी नहीं है देखते हैं 6th क्या होता है 6th होता है 6th एक घंटे की वीडियो भी होगी है पूरे घंटे की देनी है 5 मिनट ऊपर चला देते हैं हैवी हैवी क्या कह रहा होगा Also, bro, some new news, which is exciting as well. Maybe I remember you said you guys are able to go to Dubai with your passports. I'm going to be in Dubai in October. I'm going with a friend, and lately I've got, as you know, quite some people that do YouTube as well, and a lot of them are ending up in Dubai, building their company there, setting it up because there's zero tax. My thoughts right now are pretty clear on doing the same and actually going to Dubai, setting it up, setting the business up there, 0% tax, because I've told you, it's like 50%